interact with you students. This is his actual first instance when has such kind of an public in front of him who's listening to him. He's been part of interviews, but they don't generally have a large audience. So he's feeling a little nervous because he's not. But he really looks forward to sharing his experiences with you. Наверное, надо начать. Я рисую всю жизнь. Рисую рапидографом, это графика, тушью и пером. В детстве рисовал цветные картины. Так сложилось, что всю жизнь я рисую параллельно 4 книги. Sure. So to start off, he would like to share that as an artist, he is more of a graphic artist. So graphic, and especially in the Russian term, is anything to do with the drawings, and he uses rapidograph and rotring pen. And he, in the past, has been using pen and ink. He has been using crocle and the feather pens. Although when he was very young, he used to paint a lot of colored drawings and paintings. Значит, 4 книги у меня сложилось, я делаю параллельно. С 1999 года началась моя серия «Книга букв». Я учился... So, he's working on 4 different books at the same time, concurrently. Or, I'm sorry, I didn't ask. Should मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलूँ? I mean, how is it better? I did not ask you. है ना, मिक्स करके बोलूँ तो बेटर रहेगा, तो बिकॉज मैं कर सकता हूँ तो कर ही लेता हूँ. तो ये 4 किताबों पे काम कर रहे हैं और these 4 books are so जो पहली किताब है वो लेटर्स की है. Да, первая книга букв. Я ее начал в 1999 году, пока еще учился в институте, и у меня моя профилирующая дисциплина была шрифт. So when he was still studying in 1999 in his institute, he started the first book of letters. और उस टाइम पे जो इनका मेन प्रोसेस था जिस पे ये काम कर रहे थे, जो इनका डायरेक्शन था अपनी डिग्री का, he was working on fonts. Вот некоторые страницы мы вам привезли, вы можете смотреть, это то, что здесь представлено. Это некие такие памятники, получается, это буквицы, и объединена азбука тем, что она посвящена в основном, не вся, но в основном всем человеческим профессиям. So some of his earlier experiments and then they became the actual pursuit of his book of letters. He's got some of these samples for you to see. Obviously, the entire series is available at our जो मेरी गैलरी है अर्बन फ्रिंज, वहाँ पे ये सारे 27 अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं देखने के लिए जो उन्होंने करे आउट ऑफ द 33 ऑफ द रशियन सिरिलिक अल्फाबेट जो है उसमें से ये लेकर आए हैं आपके लिए कुछ, ताकि आप देख सकें ये कैसे बनाया गया. На данный момент я нарисовал 27 букв, всего в русском языке 33 буквы, и до сих пор проект находится в развитии. So 99 से जो शुरू करा है, तो जैसे ये कह रहे हैं कि 33 जो अल्फाबेट्स होते हैं रशियन सिरिलिक अल्फाबेट्स, उसमें से 20 साल में 27 कर पाए, काम अभी चालू है. Вторая книга, которую я начал в 2002 году, это книга ребусов. So जो दूसरी किताब है, the second book is called the book of rebus. Rebus एक Latin word है, we'll try and explain that to you अभी. वो उन्होंने 2002 में चालू किया था. Это композиция загадки, если вы знаете такое слово ребус. Сначала придумывается фраза, потом работается уже когда известна фраза, о чем будет и что нужно нарисовать, то работа начинается с композиции. So rebus की बेसिक अगर आपको नहीं पता है तो ये लैटिन शब्द है और इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक पजल होता है. इस पजल में पहले फ्रेज जो है वो डिसाइड किया जाता है जिसको डिपिक्ट करना है, फिर उस फ्रेज को ब्रेक किया जाता है नए तरीके से, ताकि जो शब्द पहले थे वो शब्द अपने रूप में ना रहें, उनको ब्रेक करके, मतलब कोई अल्फाबेट लेफ्ट में जोड़ दिया, कोई राइट में कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, या 2 शब्दों को जोड़ के अगर कोई नया शब्द बन रहा है और फिर उनको डिपिक्ट किया.
तो इस तरीके से जो है एक पजल क्रिएट करा जाता है कि जो आप कहना चाहते हो और वो जो दिखता है वो नेसेसरली सेम नहीं होता, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ता है और मतलब निकालना पड़ता है उस चीज़ का। Ну, третья книга, она заключает в себе некую коллекцию моих где-то миниатюры, называющиеся микродрамы. Это мелкие бытовые жизненные казусы, которые всем известны. Плинтус сломался, где кончик скотча приклеился прочно, скотч не отлепляется и прочие. Ну, это как коллекция, такая микродрама. So the third book is basically about miniature work. जो miniature work है उसमें छोटे मतलब साइज में छोटे हैं, तो these are larger works AC साइज के बनते हैं, miniature works छोटे छोटे बनते हैं और उनके अंदर जो सब्जेक्ट है वो माइक्रो ड्रामा होता है फ्रॉम डेली लाइफ। तो वो छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि आपने टेप चिपकाया, कहीं से उखड़ा कहीं से नहीं उखड़ा और कुछ फट गया है या कोई चीज़ टूट गई है, आपका माइक्रोवेव नहीं काम कर रहा है, तो ये आप जिंदगी के तो जो जिंदगी की छोटी छोटी सच्चाइयाँ हैं, आप उसमें से वो जो माइक्रो ड्रामाज है, तो मतलब जिंदगी एक ड्रामा अगर मान ले तो उसके छोटे छोटे इंसिडेंट्स को उठा के उनको जो है कैप्चर करा जाता है मिनिएचर वर्क के अंदर। Ну и четвертая книга, она как бы это сложно назвать книгой, потому что каждая картина где-то форматом 1,5 на 2 метра, но все равно мне она видится серией, и значит это как бы я вижу ее немножечко в виде огроменной книги. Это книга макроувеличений этих миниатюр. जो चौथी किताब है उसको किताब कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि किताब के अपने साइजेस होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, और ये जो काम है ये बहुत बड़े हैं, ये 1 by 1.5 मीटर्स के साइज है, मतलब 3 by 4.5-5 फुट के साइज में बन रहे हैं, और ये दिस इज एक्सपेंशन जो मिनिएचर वर्क्स है उन्हीं को एक्सप्लोर करके उन्हीं को जो है वो बड़े कामों के अंदर बनाया जा रहा है। Ну, у нас, наверное, не хватит сегодня времени просто, чтобы рассказать про все. Я хотел бы начать, наверное, с ребусов. Ну, и постарался, чтобы это немножечко познавательно для вас было, и рассказать, начать с них. ऑब्वियसली सारी चीज़ों को बता पाना और सब चीज़ों के बारे में बात कर पाना भी पॉसिबल नहीं होगा टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से, तो कोशिश करेंगे। शुरुआत ये करना चाहते हैं रीबस से, ताकि आप उसको थोड़ा समझ सकें और कैसे वो प्लान होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है। Ребус как жанр искусства возник, в принципе, примерно в 15 веке. И, ну, как рассказывают, что это вроде как во Франции были шарады и пантомимы. Такие домашние сценки, где нужно было отгадывать. Одни люди изображали что-либо или кого-либо, другие это отгадывали. रेबस जो है की हिस्ट्री मानते हैं कि 15वीं शताब्दी मतलब 15th सेंचुरी के अंदर फ्रांस में शुरू होता है, और ये घरों के अंदर लोग जो हैं वो एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं। तो एक शराड है, तो हम जैसे डम शराड्स जो है वो खेलते हैं फिल्मों के नामों के साथ में, एंड देन वी ट्राई टू प्रेजेंट। और जो पैंटोमाइम एक तरीका होता है जिसमें आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आप जो है वो जेस्चर करके या जो है मूवमेंट करके जो है वो आप मैसेज को पुट अक्रॉस करते हैं और सामने वाले को उसको गेस करना होता है। सो दीज वुड बी थिंग्स जो घरों के अंदर लोग करा करते थे एक दूसरे के साथ। Да, как бы известно, что вот этот период Средневековья, это был такой карнавальный период, где было огромное количество праздников на площадях. Вот. В дальнейшем это начало развиваться в 19 веке, они стали особенно популярны уже как рисунки. В России выходил журнал, не только в России, а в Европе в 18 веке выходили журналы, где печаталась загадка, а в следующем номере печаталась отгадка, и это приносило самую большую прибыль журналам, потому что всем было очень интересно отгадывать. ये जो मिडिल एजेस हैं जो 15th सेंचुरी का है, इसमें ये सब होने के बाद जब ये आगे प्रोग्रेस करता है तो 18th-19th सेंचुरी के अंदर किताबें निकलने लगती है, मैगजीन्स निकलने लगती हैं, जिसके अंदर एक एडिशन के अंदर वो रीबस बना होता है और उसका जो आंसर है वो अगले वाले में दिया जाता है। तो दे बिकम
वेरी मतलब वो एक क्लिक बेट हो जाता है कि लोगों को खरीदना ही होता है इस चीज़ को, तो सेल्स भी काफ़ी जो है राइज करती है। रशिया में भी है, यूरोप में भी काफ़ी ऐसी किताबें निकाली जाती हैं। Да, в России выходил в 19 веке, в конце века, журнал «Ребус», где тоже был очень самый популярный. Это был предреволюционный период такой декаданса, немножечко такому любви людей к спиритизму какому-то. Вот. И я что-то постарался в интернете найти, вот несколько ребусов. Вообще я искал в интернете, сейчас вот мне так интересно было, но в 20 веке мы все знаем, что в основном это детские рисунки, совершенно простые. Мне очень интересно было найти параллель, чтобы были какие-то единомышленники со мной, но я пока вот нашел это только вот в прошлом. तो जैसा कि 19th सेंचुरी के अंदर ये किताबें निकल रही थी, सो व्हेन ही वाज रिसर्चिंग फॉर हिमसेल्फ, तो देयर इज अ बिग गैप कि मतलब वो 19th सेंचुरी में होता है और फिर काफ़ी लंबा गैप होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो एक जो सोसाइटी है वो एक अलग उसमें दौर में से गुजर रही है। देयर इज अ सेंस ऑफ डेकेडेंस, सेंस ऑफ लॉस, स्पिरिचुअल पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते वो आता है एंड देन वो फेज थोड़ा रुकता है। तो when he wanted to search for something जो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी रहा हो या ज़्यादा 20th सेंचुरी का रहा हो फिर भी, तो he didn't really find much। इनको अपने कामों में और जो 19th सेंचुरी के काम में थे उनमें जो है ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनेस दिखी। Да, возможно из-за того, что это немножко связано и с моей техникой тоже, потому что я использую технику, которая имитирует гравюры. Вот, на данный момент. Вот то, что я нашел, немножечко похоже. So these ये जो सैंपल्स ये दिखा रहे हैं इनके अपने नहीं, these are samples जो प्रीवियसली बने हुए हैं, और ऐसा इनको लगता है कि जब इनकी प्रैक्टिस चालू हुई तो उसमें इनको अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी एचिंग के स्टाइल में करते हैं। जो काम भी इनका बन रहा है, चाहे वो रिबस है बाकी भी, उसमें एचिंग की जो शॉर्ट स्ट्रोक्स और ये सब चीज़ों में जैसे आप वॉल्यूम, डेप्थ और ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, तो जो इनको दिखा कि इन कामों के अंदर भी ऐसी जो है एक क्वालिटी थी। Ну да, и на данных картинках мы видим, что все современные ребусы и старые ребусы, то, о чем идет речь, и мои, здесь играют со словами и лингвистическая некая составляющая. जैसे ये वाली आप देख रहे हैं इसके अंदर है देयर इज अ सेंस ऑफ लिंग्विस्टिक यूजेज, मतलब जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है यहाँ तो ऑब्वियसली रशियन लैंग्वेज का है, उसी के शब्द होंगे। और इन्होंने नहीं कहा, बट मैं ты можешь вернуться? Сейчас я другую уже. Нет, я просто хочу показать, что там старый рус. Да. Там язык. Да. По воскресеньям стоит там, а там нет, это другой. Можешь быть на ту? Прошу прощения. А следующий? Еще? О. आप नहीं जानते रशियन सिरिलिक लैंग्वेज, मतलब जो रशियन के अल्फाबेट्स हैं आप नहीं पहचानते होंगे, लेकिन आज की भाषा और पहले की भाषा में भी फर्क आया है। कई शब्द के अक्षर जो है वो ड्रॉप हो गए हैं क्योंकि हम चेंज करने लगते हैं। जैसे कि वाटर कलर है वो COLOUR भी लिखा जाता है, COLOR भी लिखा जाता है। इस तरह से लैंग्वेज इवॉल्व करती होती है। मैं सिर्फ एक इन्होंने नहीं बोला, तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। इसमें जो ये लास्ट वाला जो बी की तरह है, बी के सर पे जो है एक डंडा सा भी लगा हुआ है, सो ये ड्रॉप हो गया है। अब ये नहीं होता है उसके अंदर जब लिखी जाती है लैंग्वेज, तो ये वाला जो है वो ड्रॉप ही हो गया है बिल्कुल। तो इस तरह से एक लैंग्वेज भी एक इवॉल्व करती है, ये भी इन चीज़ों से क्योंकि ये एग्जिस्ट करती हैं, तो हम जान सकते हैं प्रोसीड्यूर что вот так пропала эта буква, конечно, там все написано, да? По воскресеньям там. Да, да. Вот этого же нет больше. По этим, потому что они находятся существу, да, мы можем на них посмотреть, Да. мы можем эволюцию посмотреть языка. Да. Да. Спасибо. Да, ну вот это, значит, один вид ребусов фонетический. А второй, то, что вот я видел в 20 веке, сейчас, пожалуй, что самый популярный и выходит на обложках, я тоже составил небольшую подборку вам. Это журнал Economist.
ежегодно, значит, печатает в самом последнем номере, 12 в декабре, предсказания на следующий год. При всем должен сказать, что меня очень волнуют некие политические события в моей стране, и я очень хочу, чтобы завершилась война, например. И каждый год обращаюсь к этому, потому что очень много сбывается, все пытаются трактовать, но суть в том, что здесь ребусы придумываются, и у них другая составляющая, они делаются из символов часто, из знаков, из символов, и их нужно как-то разгадывать немножко по-другому. So, जो पहले 19th सेंचुरी के एग्जाम्पल्स इन्होंने दिखाए वो ज़्यादा फोनेटिक्स के ऊपर थे या लैंग्वेज से डायरेक्ट कनेक्टेड थे, तो जो एलिमेंट्स भी बने हैं उनका पर्पस है वो साउंड को प्रोड्यूस करना, वो उस चीज़ से कनेक्ट करना ताकि आप पूरी पजल को एक साथ जो है वो पकड़ सकें। बट ये 20th सेंचुरी में एक कनेक्शन जो ये देखते हैं कि ये इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है ये भी रिबस यूज़ कर रही है, बट वो फोनेटिक्स के एलिमेंट नहीं है, इनका एलिमेंट्स और इनके सब्जेक्ट्स जो है ये ऑल आर टारगेटेड टू समथिंग एल्स, कि ये इकोनॉमिस्ट में जो है वो साल के एंड में फॉर द फ्यूचर एक प्रोफेसी की तरह की क्या होने वाला है उस तरीके की जो है वो रिबस बनाया जाता है, जिसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और आपको जो है वो पजल जो है वो कनेक्ट करना है कि कैसे होगा, बट वो एक्चुअली में सिंबल के ऊपर ज़्यादा रिलेवेंट है, ना कि उनकी फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। Ну да, мы видим, и очень много пытаются их каждый год, когда они выходят, сразу выходит огромное количество статей, все пытаются как-то трактовать их, ну и потом проходит этот год, и часто бывает, что это все действительно сбывается, вплоть до мелочей, но насколько я знаю, что это действительно есть какая-то богатейшая каста Рокфеллеров, которым принадлежит этот журнал, и они, в общем, как мне представляется, дают некий месседж своему художнику и, в общем, как бы делают композицию какого-то политического интриги для следующего года, потому что это как бы банковские такие. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इकोनॉमिस्ट 2019 का जो है वो प्रेडिक्शन कर रही है, तो ऑल्दो ड्राइंग्स ऐसा लग रहा है जैसे लियोनार्डो दा विंची के टाइम की बनी हुई हो, लेकिन जो उसके अंदर सब्जेक्ट बने हुए हैं जैसे आप ट्रम्प देख सकते हैं, गांधी जी बैठे हुए हैं, पुतिन है, तो एक अलग तरीके का मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट देते हुए जो पुरानी चीज़ें थी उन्हीं को रिड्यूस किया गया है। Ну вот. Но я хотел вернуться немножечко к своим ребусам, наверное, показать то, что у меня получается. И я начал делать их, это фонетические игры со словами. Сначала я нарисовал, стал работать с русским языком, а потом потихонечку попробовал еще и с английским поработать. तो he would like to return to his own words, और इनका जो काम है उसके अंदर ये फोनेटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। व्हेन ही स्टार्टेड इन्होंने ऑब्वियसली रशियन मतलब सेंटेंसेस या रशियन फ्रेजेस के साथ में काम करना शुरू करा, बट विद धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ तो इन्होंने इंग्लिश के जो फ्रेजेस हैं उनके साथ भी जो है वो उनकी फोनेटिक्स को उठा के जो है सिम्बॉलिकली उसको जो है रिप्रेजेंट करने की शुरुआत की। Да, должен отметить, что это действительно заслуживающий интересный процесс придумывания самой фразы. Ну, я играю со словами и, как правило, сижу вначале со словарем. То есть तो जो शुरुआत होती है उसके अंदर जैसे फ्रेज निकाला जाता है तो फ्रेज के साथ साथ ही सिट्स विद द डिक्शनरी, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स चाहिए होते हैं, एलिमेंट्स कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, उनके माइक्रो लेवल पे क्या जो है रिप्रेजेंटेशंस होंगे, क्या सिंबल्स होंगे, तो उसके लिए एक तरीके से शब्दों का एक अलग से डिक्शनरी में से निकाल के जो है वो अपने लिए वो शब्द चुनते हैं। He makes a list of these words. Да, и как показывает вот опыт, часто фраза, которую ты придумываешь, ты не знаешь совершенно, о чем будет речь идти. Твоя задача как бы быть проводником и сталкером таким, и только следить за тем, чтобы фраза сама
была родилась совсем в результате очень органично звучащей. तो जब आप शुरुआत करते हो और वर्ड्स जो है वो निकाल रहे होते हो तो आपको कई बार ये खुद भी नहीं पता होता कि जो फ्रेज का अपना मीनिंग है वो कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, कॉम्पोजिशन कैसे बनेगा। तो आप अलाउ करते हो अपने आप को वो लिबर्टी कि आप उसे ऑर्गेनिकली जो है वो कंपोज करोगे while working with the words. Да. Часто бывает, да, потому что все еще началось у меня с такого жанра, как палиндром. Это то, что читается слева направо и справа налево одинаково. В английском языке тоже есть такие аналоги. Вот. Но это как бы младший ребус, это гетерограмма. Такой как младший брат палиндрома. तो इन्होंने शुरुआत जब करी थी तो जो शब्द थे वो आसान इनके वो लगते थे, वो थे पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स वो शब्द होते हैं जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम पढ़े जाते हैं, मतलब सेम उनका मीनिंग रहता है, सेम जो है उनकी स्पेलिंग रहती है। तो रशियन में भी ऐसे वर्ड्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसे वर्ड्स हैं, तो इनको अपनी शुरुआत के लिए जो है ये आसान लगा ज़्यादा। Ну, когда придумываешь палиндромы, например, я общался с писателями, которые этим занимаются и играют тоже со словами, получается, что ты ощущаешь буквы, слова становятся буквами. Они как кирпичики маленькие, из которых ты можешь комбинировать некие композиции, но не все переворачивается слева направо и наизнанку. Поэтому ты начинаешь ощущать как бы особенную ценность слов некоторых, которые можно как-то играть. तो he had a lot of conversations with other people जो लिखते हैं और लिखने में मतलब शब्दों के साथ खेलते हैं, कैसे जो है वो कंस्ट्रक्ट करा जाए उनका रिटन मैटर। तो उनसे भी बातचीत में इनको ये समझ में आया कि कई बार सारे शब्द जो हैं वो रिपीट नहीं होते, पैलिंड्रोम की तरह नहीं खेलते, लेकिन जब वो काम करते हैं उनके साथ तो एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये जो शब्द हैं, शब्दों के जो अक्षर हैं, वो जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो बिल्कुल उनको एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह लगने लगते हैं, जैसे ब्रिक्स की तरह लगने लगते हैं कि उनको जब चेंज करा जाता है पोजीशन से एक नई कॉम्पोजिशन जो है वो क्रिएट होती है उसके थ्रू। Ну вот, например, вот ребус номер 26, показать надо вначале, наверное, что здесь нарисовано. Здесь нарисован тент, вот он справа сверху. So इसमें ये जो रिबस नंबर 26 है, इसके अंदर एक वर्ड है टेंट। तो आप देख सकते हैं ऊपर टॉप में जो राइट कॉर्नर है वहाँ पे टेंट पिच किया हुआ है इन्होंने। И дальше в ребусе может быть не одно слово, а комбинация слов. Уши тащит прах от мух. Ears stole ash of flies. So ये शब्द है टेंट, ears, что там है? Уши тащит прах от мух. Ears stole ash of flies. Еще раз. Ears stole ash of flies. Yes. Tent And ears to ash of flies. yes. And है और सब कुछ And now we can read 10 tears to wash off flies. सो ये जो शब्द हैं ये आपस में जोड़ के इनको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसको हम पढ़ सकते हैं 10 tears to wash off lies। तो ये एक तरीके से शब्द अलग अलग थे, उनको जब रिकंस्ट्रक्ट करके न्यू उनकी कॉम्बिनेशन करी गई। हम उनको इधर उधर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी कनेक्शन विद विच वर्ड कर रहे हैं, तो उसी के अंदर पूरा का पूरा एक फ्रेज बन गया। तो एलिमेंट सारे इसमें हैं, आपको ईयर भी दिख रहा है उसके अंदर और वो एश ऑफ फ्लाइज भी दिख रहे हैं और टेंट भी दिख रहा है, लेकिन जब इनकी कॉम्बिनेशन करके जो है हो रहा है। Да, и тут возникает самое интересное, то что это не сюрреализм, который несколько связан со сновидениями, а я это называю как бы фонетический реализм, потому что нужно нарисовать именно то, что требуется, ничего лишнего. So this is not necessarily surrealism, क्योंकि surrealism बात करता है कि जो हमें सपनों में दिखता है या जो ड्रीम लाइक सीक्वेंस होता है उसको हम जब प्रेजेंट करते हैं तो वो surrealism है। वो अपने लिए बिलीव करते हैं कि ये दिस इज मोर लाइक फोनेटिक रियलिज्म,
कि जो चीज जैसी सुनाई देनी चाहिए या जो चीज वैसी होनी चाहिए वो रियलिज्म में जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए. И тут я могу в заданных рамках, получается, немножко импровизировать в заданных рамках. Ну вот, например, как нарисовать прах от мух. हाँ. So, सब ये जब आप बना रहे होते तो आप अपने लिए रियलिज्म को भी जो है वो रिप्रेजेंटेशनल कैसे रखोगे. जैसे ऐश ऑफ फ्लाइज जो वहाँ पे लास्ट वाला जो प्रॉम्प्ट था इसको कैसे प्रेजेंट करोगे आप. Если я нарисую просто точечки, никто не поймет, что это такое. अगर ये सिर्फ जो है वो डॉट्स बना देंगे तो उसका मीनिंग नहीं बनेगा कि ये ऐश ऑफ फ्लाइज है कि नहीं है. Соответственно, нужно нарисовать какую-то кучу пепла, и выходит, что некие экзекуции, и когда мух сжигают, и потом их, собственно, везут в эту большую кучу. तो आपको एक तरीके से पूरा प्रोसेस पूरी स्टोरी बनानी पड़ेगी ताकि उसका मीनिंग बन पाए. तो अगर आप देखोगे तो उनको कहीं जलाया जा रहा है फ्लाइज को, फिर उनकी ऐश बन रही है, फिर उनको लेकर आया जा रहा है. Да. तो ये जो पूरा तो अगर आप देखोगे तो पहले उनको अलग जलाया जा रहा है, कुछ कुछ के पैर भी दिख रहे हैं उसके अंदर जो पाइल है ऐश की उसके अंदर, और फिर वो उसको जो है वो लेकर आया जा रहा है और यहाँ पे रखा जा रहा है. Ну да. И, собственно, все это тащит кушать. Очень интересный момент. Нужно отметить, что когда ты придумываешь фразу, то вот в обычном языке, в некоторых языках вот, слева направо пишут, в арабском, например, справа налево, в японском сверху вниз. А здесь происходит некая часто ситуация, что ты придумываешь фразу, не зная, про что будет речь. Очень часто из середины ты берешь слово и сначала достраиваешь фразу в начало, а потом, примерно поняв, о чем будет речь, ты начинаешь достраивать ее в конец. То есть получается... इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लिखी जाती है स्क्रिप्ट या जो कोई भी लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं वो अलग अलग फॉर्म में लिखी जाती हैं. जैसे अरेबिक है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इंग्लिश रशियन जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जा रही है, जापानीज टॉप टू बॉटम लिखी जा रही है. सो व्हेन ही प्लान्स हिज वर्क, इन्होंने अपने लिए देखा है कि क्योंकि इन्हें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कैसे वो एंड तक आ पाएगा, तो ये बीच में से शुरू करते हैं. तो जो सेंटर ऑफ द पेज में से पहले प्लान होता है कि यहाँ शुरुआत है, ये मेरा एक सेंट्रल पॉइंट है, फिर उसके लेफ्ट में उसका जो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके ऊपर जो है वो वर्क होता है, और फिर उसके बाद जो है राइट वर्क में उसके एंड ऑफ द सेंटेंस के ऊपर या फ्रेज के ऊपर वर्क होता है. Да, я включил следующую картину. У меня здесь несколько страшных, немножко темных портретов. Это пандемический период, когда пандемия началась. Бывает так, что, может быть, это на подсознательном уровне, но какие-то настроения общие, они тоже влияют в данном случае на какие-то, на композицию. Может быть, это тут так вот сложилось. तो जैसे हम आगे के काम पे देख रहे हैं, इस तरीके के और भी कुछ काम है जो थोड़े से डार्क है, और उनका रीजन ये है कि ये पैंडेमिक के टाइम पे जो है इन्होंने करे थे. तो हो सकता है कि जो कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो उसका पैंडेमिक या पैंडेमिक की जो आसपास चीजें हो रही थी उससे जो इम्पैक्ट था, तो जो एक्सप्रेशन निकल रहा है वो थोड़ा सा डार्क निकल रहा है. जिन चीजों को ये सर्च करके क्रिएट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को, वो थोड़े से डार्क भी निकल रहे हैं. Здесь нарисовано head, swarm of tentacles and air. Swarm of tentacles. And we can read now So इसके अंदर है rebus number 25, heart, swarm of 10 towers. Yes. In последнем что? Ear, голос. And hair. Yeah. तो ये जो है वो इन्होंने prompts लिए हैं अपने लिए, और इसको अब हम फिर से पढ़ेंगे. И здесь читается, сердца зачастую греются от уэльского воздуха. Уэльс это в Англии. Heads warm often to Welsh air. Hearts warm. Often. Hearts warm. Often. To Welsh air. To Welsh air. Да, Welsh and it is in England. Welsh is in England, आपका जो वेल्स का
area. Да, ну вот вернувшись к тому, что как придумывается ребус, и он рождается из середины, нужно сказать, что очень интересно, что сама фраза становится как бы одним словом и уподобляется в общем иероглифу. Ты когда только закончишь ребус, а часто это бывает берет и до месяца, но ты понимаешь, что его ценность и зачастую это больше приносит удовольствие, нежели просто визуальное его изображение, которое чаще бывает делается довольно быстро. So, जैसे ये काम करते हैं और जब वो कंप्लीशन की स्टेज पे आता है, कई बार ये समझ में आता है कि जैसे जो हायरोग्लिफिक्स है, जैसे इजिप्शियन जो पिक्टोरियल स्टाइल है, लैंग्वेज है, पिक्टोरियल लैंग्वेज, वो कैसे डेवलप हुई होगी, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा जाए तो इनको लगता है कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, एक्सप्रेशन है, वो एक पिक्टोरियल उससे जो है वो बन सकता है। लेकिन ये रियलाइजेशन बाद में होती है, जब आपकी चीज़ बन जाती है तो आपको समझ में आता है कि इसको हल्का सा और सिंप्लीफाई करके बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया। आप अगर इसके नीचे देखें, не можешь, ना तो который अगर आप नीचे देखेंगे तो काफी डिटेल में ये जो हेयर है ना, ये हेयर फॉलिकल है। आपने अगर कहीं बायोलॉजी वाले उस पर भी देखा हो तो ये सेल का, ये स्किन का जो जहाँ पे हेयर निकलते होंगे उसका क्रॉस सेक्शन है। तो उस पार्ट को उन्होंने काफी डिटेल में कराया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर जो है वो बाकी चीजें जो हार्ट है या जो और चीजों का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सिंप्लीफाई करके जो है वो आसान तरीके से जो है ये पूरे स्टेटमेंट को एक चीज में बता सकता है, जो हो सकता है इजिप्शियंस ने करा हो शायद अपने हायरोग्लिफिक्स के लिए। Да, вот еще один следующий, это тоже пандемический период, и мы здесь видим drawing So इसके so मतलब जो फीमेल पेग होती है वो है represented, then hen है, so hen, link, web, link, heap and pairs. ये heap है और साइड में pairs है। Heap and pairs. And we can read now. So when we blink, he appears. So when we blink, he appears. तो ये एक स्टेटमेंट अलग से बन जाते हैं, पूरा एक फ्रेज बन जाता है। तो ये जो कोड है ये कई बार साथ में डेवलप होता है, कई बार सेपरेटली बनता है, एंड देन व्हाइल यू वर्किंग एट इट कम्स टू यू। Next one. Нужно сказать, что иногда они выходят совсем неудачные, и я часто пролистываю, чтобы вам показать, что самое интересное – это фонетическая составляющая. Бывает не очень удачные. В данном случае мне очень хотелось просто нарисовать порт с удовольствием, где рыбаки, где лодки в виде человека. Но сама фраза, она совершенно как бы никакая. Heads, scan, note, victim, port and spies. And we can read head, scan, note, and vict, important spies. No, it's not so. So ये वाले जब आप बनाते हो तो since you are working on it and उसके साथ साथ ही पता ये बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से बन रहा है, तो जो उसका फाइनल बनता है कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा लगे। लाइक इन हिज केस इनका बहुत मन था कि वो जो फिशरमैन और वो सब, बिकॉज वो खुद फिशिंग वगैरह करते हैं, तो वो बनाने का मन था उनका, तो उन्होंने उसके अंदर एलिमेंट्स भी लिए, वो सारी चीजें करी, लेकिन जो फ्रेज बन के एंड में निकल गया, ही वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। बट काम करने में तो बहुत मजा है। तो ये जैसे मोशो की लीजिए तब फ्राज करता है तो जैसे हेड है, हेड स्कैन, नोट, विक्टिम, पोर्ट एंड स्पाइस, ये अलग अलग हो गए। तो इसका बन गया हेड्स कैन नॉट एविक्ट इम्पोर्टेंट स्पाइस। तो ऐसे जिसका कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इनके लिए जो है वो एंड में फ्रेज नहीं बना, बट अगेन इट्स अ डेवलपमेंट, इट्स अ प्रोसेस जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते हो अपने काम के साथ, एंड देन आपको एंड में ही पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा लगा नहीं लगा। Ну, она выходит несколько натянутой. मतलब थोड़ा सा कॉन्फ्यूलेटेड सा, मतलब वो बन रहा है कि इसका मीनिंग एक्चुअली में इस पूरे फ्रेज का क्या बना।